Hi student, in part of our coordinate geometry, till now we have discussed the distance formula. In our earlier classes, we have learned about our distance formula. Then we have done some base problem in our distance formula. We have seen that how can we show that the given triangle is an equilateral triangle, and how can we find out any point on the x-axis. It's equidistance from two given points in the plane there. Then in today's class, we are going to be used all of you have learned about in earlier classes that the ratio between the two quantities, and then also all of you learn about that how can we divide two numbers in the given ratio there. In part of our coordinate geometry, now in today's class we are going to discuss that how can we find the coordinate of a point which divides the line segment in our line segment for given 2 points there. Then it's known as our section formula. In today's class, we are going to be discussing about section formula. Means in our section formula, it's able to us to find out the coordinate of a point which is going to be divides a line segment in a given ratio there. Just suppose first of all, take up xy plane, first quadrant. We have take OY in there and OX, and now we take our XOY plane. Just suppose we have a two point there. We have a point P, a point Q. Coordinate of point P is what? We are going to take x1, y1, and Q is what? x2, y2. We have a coordinate, point P coordinate is what? x1, y1, and Q is what? x2, y2. Just suppose point R dividing our line segment PQ, its coordinate is what? x, y. Now we are going to find out in the ratio L is to M. Okay. Just suppose we are going to be find out the coordinate of R. We have take x, y. How can we find out the value of x and y which divides our line segment PQ in the ratio L is to M? Then first of all we are going to draw a perpendicular from P to OX, a perpendicular R. Then क्या किया हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक है, M L N P M and R L Q N on the x axis. हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया M L. अभी क्या करते हैं, ये रेशियो है, क्या किया, यहाँ से एक डाल दिया, परपेंडिकुलर डाल दिया. अभी एल हम ले लें, ठीक है, परपेंडिकुलर डाल दिया. अभी इन पॉइंट्स मार्क कर लेते हैं. वी हैव पी आर क्यू, और वहाँ पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया पी पे और क्यू पे. जो सपोज ये हमारे पास परपेंडिकुलर हो गई. एक और करते हैं वहाँ पे. अभी हमें आर के कोऑर्डिनेट चाहिए, तो हमने क्या किया, हमारे पास ये पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है, हमारे पास डिवाइडिंग लाइन रेशियोज थी एल और एम. हम पी से नहीं करते हैं, वहाँ पे एक लाइन पास करते हैं आर से. तो क्योंकि अगर पी से पास करेंगे तो हमारा रिक्वायरमेंट नहीं हो पाएगा. अभी क्या करते हैं, इस डिवाइडिंग सेगमेंट एल लिया, हमने क्या किया, एक आर से एक लाइन पास करते हैं जो परपेंडिकुलर पड़ता है वहाँ पे क्यू एन पे. ये लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है बेटा, क्योंकि हमें जो चाहिए वो उसके लिए हमें सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स यूज़ करना पड़ेगा बेसिकली. अभी ये हमारी पॉइंट P है, इस पॉइंट को क्या ले लिया, ये S है, और क्या किया हमने R से एक लाइन पास किया. द नेम ऑफ द लाइन इज व्हाट, वी हैव टेक ST, ठीक है, हमने एक लाइन पास कर दिया, इट्स आवर ST. और लुक देन अभी वी हैव अ ट्राइंगल्स हियर. ये पॉइंट R पहले से ही है, ठीक है बेटा. अभी लुक वी आर गोइंग टू डिराइव आवर सेक्शन फॉर्मूला देयर. क्या किया हमने, हमारे पास वी हैव अ पॉइंट P एंड Q. R इज गोइंग टू बी इट्स कॉल्ड एज इंटरनल डिवीजन सेक्शन. आपका जो R है वो इंटरनली डिवाइड कर रही है हमारी लाइन सेगमेंट PQ को इन द रेशियो L is to M. In the ratio L is to M means what we have, PR, this PR is to RT is what,
L/M। तो बेटा अभी हम क्या करते हैं, वी आर नॉट फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू फाइंड आउट आवर सम वैल्यूज ऑफ कोऑर्डिनेट देयर बिफोर वी आर गोइंग टू यूज आवर सिमिलैरिटी ट्रायंगल कॉन्सेप्ट देयर। अभी यहाँ पे हम सिमिलैरिटीज ऑफ ट्रायंगल्स यूज करेंगे। तो बिफोर दैट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट व्हाट जो हमारे पास रेशियोज थी। देखो हमने जो रेशियोज लिखी है वो पी आर देन ये एम था, ये रेशियो एम है, तो पी आर इज टू not RT, PR is to RQ, the ratio of PR is to RQ, L is to M, ये हमारे पास है। ठीक, अब इस ट्राइंगल इन ट्राइंगल SPR एंड इन ट्राइंगल RQT, ये दो ट्राइंगल्स में हम कुछ अपने फर्स्ट ऑफ ऑल हम दिखाएंगे कि ये ट्राइंगल्स हमारे क्या है, ये सिमिलर ट्राइंगल्स है। बिफोर दैट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट आवर कोऑर्डिनेट देयर। लुक, वी आर गोइंग टू फाइंड आउट सम वैल्यूज। वी आर गोइंग टू फाइंड आउट SR। ये बेटा व्हाट अबाउट SR, तो हमारी SR वैल्यू वो कैसे मिलेगी हमें? SR इज इक्वल टू SR, दिस SR इज इक्वल टू ML, ये SR हमारी ML के इक्वल है। हाउ कैन वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ML? इट्स OL माइनस OM, OL माइनस OM। व्हाट अबाउट आवर OL? OL जो डिस्टेंस है ये x है, OM हमारी x1 है, मीन्स इट्स आवर x माइनस x1। ठीक है, लुक we are going to find out the value of SR there. Now then we are going to find out now RT, the value of RT. How can we get RT? This RT is look equal to what? ln. What is how can we get ln? ON minus OL. The distance ON is what? Our x2. OL is what? X. ठीक है, now we have two coordinate here. SR is given by x minus x1 and RT is given by x2 minus x2। क्या किया हमने? SR निकाल लिया, RT निकाल लिया। अभी क्या जरूरत पड़ी है? अभी हम we have to find out this PS and TQ। Look PS, इस PS को मेजर करें बेटा। Then how can we get this PS? अब इस PS को हम कैसे मेजर कर सकते हैं? जो हमारी PS की वैल्यू है वो कैसे मिलेगी? जो हमारी लेंथ ऑफ PS है, हाउ कैन यू गेट फाइंड आउट दिस वैल्यू PS? इस PS की बात करेंगे, इसके वैल्यूज की बात करेंगे, इस वैल्यूज PS की बात करेंगे। दिस PS इज व्हाट? इट्स अ डिस्टेंस ऑफ MS टू माइनस MP, MS माइनस टू MP। व्हाट इज द लेंथ ऑफ MS? दिस लेंथ इज इक्वल टू व्हाट? Y2। MS is what? Our Y2. Look, it's equal to this values, not Y2. Y2 is this point. MS is equal to our this LR. Then our MS is equal to LR, means we take LR minus MP. MS को मिलाकर क्या कर सकते हैं? Then we have LR minus MP. LR क्या है बेटा? LR की वैल्यू Y कोऑर्डिनेट Y. What is our MP? Y1. Now we have PS, we are going to find out the length of QT. अभी हम QT निकालते हैं। Then QT क्या होगा? QT is given by total length QN। QN में से हम TN को माइनस करते हैं, Q1 माइनस TN। तो अभी लेंथ QT क्या हो जाएगा? इट्स टोटल Y2 माइनस Y। इट्स Y2 माइनस Y। लुक, हमने ट्रायंगल PSR और ट्रायंगल Q2R में अपने कुछ लाइन सेगमेंट निकाले। क्यों? क्योंकि नाउ वी आर गोइंग टू बी सो दैट ट्रायंगल SPR, नाउ ट्रायंगल SPR इज सिमिलर टू ट्रायंगल TQR। होगा बेटा? वी हैव टेक ट्रायंगल दिस SPR इज सिमिलर टू ट्रायंगल दिस TQR। हमने ट्रायंगल SPR लिया है, उसको दिखा दिया ट्रायंगल TQR सिमिलर है। कैसे? हाउ? बिकॉज ये हमारे जो एंगल्स है ये परपेंडिकुलर्स पड़ेंगे। एंगल PSR इज इक्वल टू एंगल TQR। एंगल PSR इज इक्वल टू एंगल TQR, सॉरी, एंगल PSR इज इक्वल टू एंगल QTR, बोथ आर 90 डिग्री। देन एंगल एंगल SRP इज इक्वल टू एंगल QRT। आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो गए।
देन बाई एंगल क्राइटेरिया हमारी ट्रायंगल क्या है, ट्रायंगल SPR इज सिमिलर टू ट्रायंगल TQR। नाउ वी हैव आवर दिस ट्रायंगल्स आर सिमिलर, हमारे दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं बेटा, तो हमें क्या मिलता है, यस देयर साइड्स आर इन द प्रोपोर्शन। तो हमारे पास जो यहाँ से ट्रायंगल SPR ट्रायंगल TQR मिला, वहाँ पे हमें क्या मिलने वाला है, जो रेशियो होगा SR का रेशियो किसके साथ होगा, SR का TR के साथ। SR इज TR इज इक्वल टू, SR का TR से लिया तो PR इज टू QR। ठीक है बेटा, हमारा क्या हो जाएगा, SR TR इज इक्वल टू PR QR, SR TR इज इक्वल टू PR QR। और साथ में क्या मिलेगा हमें, ऑल्सो एंड कॉरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शन में होते हैं। देन ऑल्सो वी हैव PS बाई QT, रेशियो लेंगे PS बाई दिस QT, PS बाई QT, दिस PS इज टू QT इज व्हाट, इज ऑल्सो इक्वल टू PR QR। साइज प्रोपोर्शन होंगे तो PR QR ही लेंगे बेटा, ठीक है। वही मीन्स वी हैव यूज्ड SR TR इक्वल टू PR QR इक्वल टू PS QT, ठीक, उसको लिखने का, क्योंकि हमें वहाँ पे दो कोऑर्डिनेट निकाली, दैट्स व्हाई मैंने एंड के साथ लिखा उसको वहाँ पे। अभी क्या करते हैं, यहाँ पे इनको यूज कर लेते हैं, वैल्यूज पुट कर लेते हैं। क्या वैल्यूज है SR की, SR बाई TR, SR इज व्हाट, x माइनस x1, TR x2 माइनस x, PR QR की रेशियो दे रखी है L/M। टेक दिस इक्वेशन 1, also from this PS is to QC, PS is to QT, y minus y1 upon y2 minus y is equal to again L by M। Okay, now from equation 1 what we have, जब हम equation 1 को solve करते हैं from 1, then what we have, M x minus x1 equal to L x2 minus x। फर्दर इसको सॉल्व कर लेते हैं, then it's given by mx minus mx1 equal to lx2 minus lx, x के कोऑर्डिनेट एक साथ लेते हैं और x को कॉमन कर लिया, then we have x equal to L plus M equal to mx1 plus lx2, then the value of x is given by mx1 plus lx2 upon L plus M। look मीन्स जो हमारी x कोऑर्डिनेट है, बाई सेक्शन फॉर्मूला वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x बाई, दिस इज रेशियो ऑवर m इज टू x1 प्लस L इंटू x2 डिवाइडेड बाई द सम ऑफ द रेशियो। ठीक है बेटा, नाउ वी गेट द व्हाट आवर x कोऑर्डिनेट। सिमिलरली बाई यूजिंग इक्वेशन 2 को हम यूज करके सॉल्व करेंगे इन द सेम मैनर्स व्हेन वी आर गोइंग टू सॉल्व बाई यूजिंग इक्वेशन 2, then we get our y coordinate is what, m y1 plus L y2 upon L plus M। ये दूसरा कोऑर्डिनेट हमें जब आप इक्वेशन 2 का यूज करेंगे इन द सेम मैनर, then we get our y coordinate as m y1 plus L y2 upon L plus M। look till now what we have discussed, we have discussed how can we find use our section formula। हमने डिराइव किया कि हमारा सेक्शन फॉर्मूला से अपने कोऑर्डिनेट को कैसे मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार आप फिर से इस फिगर को समझिएगा। वी हैव टेक अप 2 पॉइंट PQ विच कोऑर्डिनेट इज गिवन बाय x1 y1 एंड x2 y2। हमने लिया कि R हमारा कोई पॉइंट है जो इस लाइन सेगमेंट PQ को इंटरनली डिवाइड कर रहा है। दिस इज अ इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला। आपके कोर्स में एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला नहीं है, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। इन द केस ऑफ एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला हियर वी गेट अ माइनस साइन mx1 माइनस lx2 अपॉन, ठीक है, वहाँ पे आपके जो प्लस के साइन है वहाँ पे माइनस हो जाएगा, वो आप याद रखिएगा। देन व्हाट वी गेट, हमने S से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया SM, R से ड्रॉ किया RL, Q से ड्रॉ किया QN परपेंडिकुलर टू अवर x एक्सिस। फिर हमने क्या किया, हमने वैल्यूज निकाली SR की, TR की, PS की एंड QT की बाय यूजिंग अवर कोऑर्डिनेट। देन वी हैव शो दैट आवर ट्रायंगल SPR is similar to TQR। सिमिलर दिखा दिया बाई एंगल क्राइटेरिया। देन सिमिलर दिखा दिया, देन व्हाट वी हैव बाय यूजिंग सिमिलरिटी, देन वी हैव कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इन प्रोपोर्शन, देन वी हैव
SR by TR is equal to PR by QR and PS by QT equal to PR by QR. Now we take SR by TR is equal to PR by QR. We put in the values, we get x minus x1 upon x2 minus x1 equal to L by M. This is our first equation. Y minus y1 upon y2 minus y equal to L by M. This is our second equation. फिर क्या किया, 1 को लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, देन वी गेट द x कोऑर्डिनेट इज गिवन बाय m x1 plus l x2 upon l plus n. इन सेम मैनर अब इक्वेशन 2 लेकर हम सॉल्व करेंगे, देन वी गेट द कोऑर्डिनेट ऑफ y इज गिवन बाय m y1 plus l y2 upon l plus n. तो बेटा ये हमारी सेक्शन फॉर्मूला थी. जब भी आपको इंटरनल सेक्शंस यूज करना हो तो इसको हम यूज करेंगे. नाउ लुक, इसी सेक्शन फॉर्मूला से नाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन अ मिड पॉइंट फॉर्मूला. नेक्स्ट टॉपिक है हाउ कैन वी गेट आउट मिड पॉइंट देयर. हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला क्या है, x कोऑर्डिनेट इज गिवन बाय m x1 plus l x2 and y कोऑर्डिनेट इज गिवन बाय, तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट पहले से अभी इस पे ये हम एप्लीकेशन करते हैं कि हाउ कैन वी फाइंड आउट आवर मिड पॉइंट. अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हो जाएगी हमारी मिड पॉइंट फॉर्मूला. लुक अभी सेम पॉइंट लेते हैं. अगर हमारी पी क्यू थी, आर का कोऑर्डिनेट उसको डिवाइड कर रहा था एक्स वाई, देन वी गेट वी हैव बाय सेक्शन फॉर्मूला व्हाट वी हैव एल इज टू एम के रेशियो में. देन व्हाट वी हैव आवर एक्स कोऑर्डिनेट इज गिवन बाय एम x1 प्लस एल x2 अपॉन m प्लस एल लिखें एल प्लस एन, एंड y कोऑर्डिनेट गिवन बाय m y1 प्लस एल y2 अपॉन एल प्लस एन. अभी व्हेन इट्स आवर मिड पॉइंट, when our r is what, when our r is mid point, जब हमारा r बेटा मिड पॉइंट होगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, then in this case our l is equal to m, mean the our ratio of this our l is equal to m. ठीक है बेटा, हमारी जो डिस्टेंस l और m क्या हो जाएंगे, वो इक्वल हो जाएंगे. when our this l and m equal there, then we take this equal to some k there. अब यहाँ पे पुट करते हैं सेम फार्मूला में, then our x is given by kx1 plus kx2 upon k plus k, then our x coordinate is given by k कॉमन कर लिया, जिसका 2k कैंसिल हो जाएगा, then we have x1 plus x2 by 2. Similarly from y what we get y1 plus y2 by 2. This is our what mid point formula. क्या बेटा हमारी मिड पॉइंट फॉर्मूला, अगर यार हमारी मिड पॉइंट है और p और q के कोऑर्डिनेट x1 y1 है, x2 y2 है, when the r is our mid point, then x coordinate is given by x1 plus x2 by 2 and y coordinate is given by y1 plus y2 by 2. तो क्या होगी हमारी मिड पॉइंट फॉर्मूला, एज सिमिलर. अगर वी हैव अ टू कोऑर्डिनेट ऑफ 2 पॉइंट्स p and q is given by as p is what x1 y1, q is what x2 y2, then mid point is given by x1 plus x2 by 2 and y1 plus y2 by 2. So look, we have discussed what we have till now. We have discussed section formula. Then we have it's that we find out that how can we find out our midpoint there. चलिए मिड पॉइंट की बात कर लिया, सेक्शन फॉर्मूला की बात कर लिया. अभी कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, सम एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन. वी स्टार्ट विद फर्स्ट बेसिक क्वेश्चन. फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द पॉइंट -17 and 4-3 in the ratio 2:3. फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स. हमें पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालना है. जैसे सपोज कि r है x y, हमें x y कोऑर्डिनेट. फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द ज्वाइन ऑफ द पॉइंट्स -17, p ले लिया -17 एंड q ले लिया -17 एंड 4-3 इन द रेशियो 2:3. रेशियो दे दिया 2:3. वी हैव टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द आवर द ज्वाइनिंग पॉइंट -17 4-3 इन द रेशियो 2:3. ठीक है बेटा. अगेन इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो हम क्या यूज करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला में यूज करना पड़ेगा. ठीक है, क्या थे हमारा सेक्शन फॉर्मूला, ये हमारी x1 है, ये हमारा y1 है, ये हमारा x2 हुआ, देन ये y2,
हमारे पास x1 माइनस x2 बाई 2 हो गया। हमें x y की वैल्यू निकालनी है। दिस इज आवर l, दिस इज आवर m। देन व्हाट इज आवर x कोऑर्डिनेट, हाउ कैन वी गेट, इज इक्वल टू व्हाट, l x2 प्लस m x1 अपॉन l प्लस m। ओके, यही था हमारा सेक्शन फॉर्मूला। नाउ वी आर गोइंग टू पुट द वैल्यूज देयर। l इज व्हाट 2, x1 is what, -1 plus m is 3, x2 is what, 4, l x2, हमने उसको वैल्यूज गलत पुट कर दिया, l x2 plus m x1, l is what, our 2, x2 हमारा क्या बेटा 4 प्लस m क्या है 3, x1 क्या है -1 एंड l प्लस m 2 प्लस 3। और उसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 4 जा 8 एंड इट्स अ -3, देन वी गेट 5 by 5 इज व्हाट, लुक वी गेट x इज इक्वल टू 1। जो हमारा x कोऑर्डिनेट हो गया बेटा वो 1 है। नाउ हाउ कैन वी गेट आवर y कोऑर्डिनेट, y इज व्हाट ly2 प्लस my1 अपॉन l प्लस m। ठीक है, l क्या है हमारा 2 है, y2 क्या है -3 प्लस m is 3, what is our y1 7 upon 2 plus 3। now 2 minus 3 -6 and 7 3 21, -6 and plus 21 क्या मिलेगा, we get 21 and then -6 we get 15, here we get 5, then we get 3, means our coordinate is what, the coordinate of r is given by 1 and 3. The coordinate of r is what, it's 1 and 3. Hence 1 3 is the required point, which hence our r 1 3 is the required points which divides our line segment in the ratio PQ is in the ratio 2:3. Okay beta, look ये हमने रेस्पेक्टिव क्वेश्चन देखा इन द बेस ऑफ आवर सेक्शन फॉर्मूला। एक क्वेश्चन लगा लेते हैं मिड पॉइंट पे, एक बेसिक क्वेश्चन लगाएंगे मिड पॉइंट पे, एंड वी डिस्कस सम एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आल्सो देयर। एंड लुक वी आर गोइंग टू टेक वन ऑफ द क्वेश्चन दैट, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ ए बी वेयर ए एंड बी आर द पॉइंट -5 11 एंड 7 3 रेस्पेक्टिवली। हमें ए बी की मिड पॉइंट निकालनी है। अगेन आर कोऑर्डिनेट निकालना है। फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ ए बी वेयर ए इज व्हाट -5 11 and 7 3। okay, r is midpoint, then x is what given by x1 plus x2 by 2, y is given by y1 plus y2 by 2। ठीक है बेटा, तो x क्या होगा -5 प्लस 7 by 2, y क्या हो जाएगा 11 प्लस 3 by 2, x is what 2 by 2 we get 1, y is what 14 by 2 we get 7, and x equal to 1 and y equal to 7। क्या हो जाएगा 1 and 7 is our midpoint, is our required midpoint for a problem whenever our r is a midpoint for points a and b given by -5 11 and 7 3। Let's take the next question. The midpoint of a line segment is 5 8। Now look here, it's given that a midpoint of line segment PQ, so suppose we take a R, the midpoint of a line segment, the midpoint of a line segment is 5 8। If one of the end point is 3 5, look suppose कि P के coordinate given है 3 5, find the second end point। अभी हमें second end point, we have to find out the coordinate of Q there। हमें second end point की value निकालनी है। Then again mid point given है, then what we have, we have x 5 is equal to 3 plus x divided by 2, and दूसरा क्या मिलेगा, अब this 8 is given by 5 plus y by 2। Now 5 to 10, 10 is equal to 3 plus x, then x is equal to 10 minus 3, we get x equal to 7। इधर क्या होगा 5 plus y is equal to 16,
then y is equal to 16 minus 5, then we get y equal to 11. And what is our required point? Our second end point is what given by the coordinate of q is given by 7 and 11. 7, 11 is our second end point of the given coordinate. वहाँ पे second coordinate हमारी ये point हुई. Now look, we are going to take next question. The vertices of a triangle are. The vertices of a triangle are. We have a given of triangle here, which vertices is given as look A, B, C. The vertices of a triangle are A 3, 4, B 7, 2. It is 7, 2, and C minus 2, 5. Find the length of the median through the vertex A. Look, we have to find the length of median. Let's suppose AD is our median. We have to find out length of AD. Again, to find out length of AD means we have to use distance formula there to get distance between AD. If we are going to find out distance between AD, then it gives what? It gives us the length of our AD there. Then first of all, to find out the length of AD, what do we do? To get length of AD, we have to first of all find out the coordinate of D there. हमें बेटा समझ आ रही बात, हमें लेंथ ऑफ एडी निकालना, उससे बेटा हमें इस पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे. ठीक है, तो पहले कोऑर्डिनेट ऑफ डी निकाल लेते हैं बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला. देन व्हाट इज हाउ कैन वी गेट कोऑर्डिनेट ऑफ डी देयर? डी इज आवर सिंस एडी इज मीडियन एंड डी इज आवर मिड पॉइंट. मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करते हैं 7 प्लस, देन वी गेट 7 माइनस 2/2, और दूसरा पॉइंट क्या आएगा? 7 प्लस माइनस 2/2, 2 प्लस 5. Then what we get? We get here 5/2 and here we get 7/2. Now we get the what? We get here our coordinate of D. What is our coordinate of D? It's a 5/2 and 7/2. Okay? क्या? Because we don't know about the coordinate of D. And first of all, we are going to find out by using the midpoint formula. हमने midpoint formula का use किया और coordinate of अपना क्या निकाला हमने? We have find out the coordinate of D there. It's a ठीक है, क्या निकाल लिया? coordinate of D निकाल लिया. The point is given by 7, 2 and minus 2. Look, point थोड़ा सा गड़बड़ ले लिया हमने. यहाँ पे minus 2 and minus 5 है, तो it's a 2 plus minus, तो ये हमारा minus 3/2 का. Now we have our coordinate of D is given by 5/2 minus 3/2. ठीक. Now look, we have to find out length AD. Then length AD is now given by distance formula under root 5/2 minus 3 whole square plus 4 minus 5/2 minus 3. Then minus 3/2 minus 4 whole square. Then so 2 minus 6 is 5 minus 6. What we get? 5/2. Then we get 5 minus 6/2 whole square, plus here we get minus 3 minus 8/2 whole square. Then look, then what we get? 5 minus 6 minus 1/2 whole square, plus minus 11/2 whole square. Then we get 1/4 plus 121/4, then under root 125/4. Then so square root of 4 is 2, but we are not going to find out the 121. Look, it's a 1 there. Then 121, 122. Then under root 122. Now look, what is our length of AD? It's given by under root 122/1 under root 122/2. You can further solve it by taking the square root of this. I'm not going to find out. Then this is our length of AD. This is our length of AD. And I say, look, today what we do today in today's class, first of all we have discussed our section formula.
then we see that how can we find out our midpoint there, and then we have done some application based question on section formula and as well as midpoint formula. Then practice similar types of question at your home. If anybody having any doubts on these problems, then please ask me in our online classes. Then thanks to all.